Good morning, students. The topic that we are going to see today in our chapter number 5 BS organizing is centralization and decentralization. This is the last topic of your chapter number 5, and in this topic you have to understand the concept of what do you mean by centralization, but our main focus will be on decentralization only. So now, what do you understand by decentralization? Now we all know that decision making plays a very important role for any organization. In order to achieve the organizational targets effectively and efficiently, it is very much important that certain people are involved who have to take various kinds of decision, whether it is related to financing, whether it is related to product mix, whether it is related to production, whether it is related to marketing or so on. So at all the levels of organization, various important decisions are to be taken. So it plays a very important role. Each organization has its own procedure of decision making. So this decision making can be taken at two ways. Now, either all the decisions pertaining to the organization, pertaining to all the departments, or pertaining to all the employees' performance and all, when the decisions can be taken by the top management only. Whereas there are certain organizations where in spite of top management, even the decision making process is shared with the lower level management also. So this gives rise to the concept of two important concepts, that is centralization and decentralization. When all the decisions related to the organization is taken or is written with the only top level management, that process of decision making is termed as centralization. So here the organization where all the decisions are taken at the top level management, that is termed as centralized organization. ठीक है, हर एक डिसीजन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है विदाउट कंसल्टिंग एनी ऑफ द लेवल्स, अदर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास वो डिसीजन मेकिंग पावर है, उनके अलावा और कोई डिसीजन नहीं ले सकता. तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा एक सेकेंड वेरिएंट होते हैं जहाँ पे the process of decision making where the authority to decide is delegated or shared among all the levels of management. That is, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करते हो इन टेकिंग द डिसीजन मेकिंग, दैट इज टर्म्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना डिसीजन लेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले जो एचआर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन लेगा, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का डिसीजन लेगा, एचआर वाले एम्प्लॉइज के रिलेटेड बेनिफिट पर्क्स या उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो भी करना है वो सारा डिसीजन एचआर लेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपने शेयर किया है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का लुकआउट नहीं है. टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट का रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है आप आपके हिसाब से दो. तो दैट अथॉरिटी ऑफ टेकिंग द डिसीजन इज बीइंग शेयर विथ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो व्हेन द डिसीजन मेकिंग इज शेयर within all the levels of management or the decision is delegated among all the levels of management, that is terms as decentralization of organization. Decentralized organization. So what do you mean by decentralization? Decentralization is nothing but delegation of authority throughout all levels of organization. ना हमने ऑलरेडी डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. डेलीगेशन में हमने देखा था कि देयर इज अ डाउनवर्ड फ्लो ऑफ अथॉरिटी जहाँ पे सुपीरियर इज गिविंग सर्टेन डिग्री ऑफ अथॉरिटी टू दी सबऑर्डिनेट सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल. और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को कुछ डिसीजंस लेना पड़ता है. वॉट एवर पावर हैव बीन गिवन टू देम, विद इन दैट फ्रेमवर्क ऑफ द पावर दे आर रिक्वायर्ड टू टेक वेरियस डिसीजंस. सो वाइल डेलीगेटिंग, सुपीरियर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं. सो ये जो हम डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी करते हैं फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, दैट इज नथिंग बट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे आपकी फैमिली में कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड आपके पापा डिसीजन लेते हैं. सिमिलरली कोई भी हाउस होल्ड के रिलेटेड काम है या चिल्ड्रन के एजुकेशन के रिलेटेड या ट्यूशन का डिसीजन है या वॉट एवर डिसीजन, वो काम कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है. तो ये क्या है? दैट इज नथिंग बट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. सिमिलरली अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल यू कैन सी कि एग्जाम डिपार्टमेंट को पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई है कि एग्जाम कंडक्ट करने के रिलेटेड वॉट एवर डिसीजन इज टू बी टेकन, इट इज टू बी टेकन बाय एग्जाम डिपार्टमेंट ओनली. वहां पे प्रिंसिपल डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करता है. ठीक है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. सिमिलरली
जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनका उनका काम करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर दिया हुआ है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? शेयरिंग द पावर टू डिसाइड विद इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो सिंपल टर्म्स में डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ईच हायरार्की लेवल. देन आप अथॉरिटी दे रहे हो हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. Then you are pushing the decision making authority down the chain of command. That is, there is a downward flow of decision making or authority process. But one point that is to be remembered over here, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती. सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती. जैसे हमें भी अगर हमें पर्सनल लाइफ में भी अगर हमें कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है, जैसे 12th के बाद आप क्या करोगे? आपको सीए करना है, सीएस करना है, ठीक है, या जस्ट आपको सिंपल कॉलेज बीकॉम या बीबीए करना है और सिंपल उसी में ध्यान देना है, उसके साथ कोई दूसरे कोर्स नहीं करना है, ठीक है. तो ये डिसीजन आपको लेना है तो कहीं ना कहीं आप आपके फैमिली को इन्वॉल्व करोगे. यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व योर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व योर कजिन्स जिन्होंने पहले से अपना करियर अच्छे से किया, सेटअप किया हुआ है, तो आप उनसे भी सजेशंस लोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वेन एवर यू हैव टू टेक एनी डिसीजन यू हैव टू इन्वॉल्व वेरियस पीपल सो दैट जो भी आपका टारगेट है वो आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सको. In the same way, for a organization also, they have to involve various other people if they want to achieve their objectives or targets very perfectly. So, when an organization is very small in size, ठीक है, जब एक small business enterprise होते हैं तो usually the decision making can be centralized. यानी small business organization में top level management या वो जो बड़े औजार पे या बड़े पोजीशन पे है, they have the right to take the decision. But जैसे जैसे बिजनेस की साइज ग्रो होती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस लार्ज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू टेक सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग. अगर आप ऐसे तरह के ऑर्गेनाइजेशन को इफ दे हैव टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली और अगर उनको टाइमली डिसीजन लेना है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है? सिर्फ क्रूशियल डिसीजंस लो, जबकि रूटीन डिसीजंस वो एम्प्लॉयज को जो भी इन्वॉल्व है डायरेक्टली या क्लोजली इन्वॉल्व है उस स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए, उनको आप ये रूटीन डिसीजंस लेने की जिम्मेदारी ले लो. सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप ये देखो कि ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के बीच में बराबर से बैलेंस मेंटेन कर सके. सो बैलेंस बिटवीन दी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिसेंट्रलाइजेशन. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमॉन्ग दी सबऑर्डिनेट्स. अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? आप लोअर लेवल के जो मैनेजर्स है उनको डिसीजन लेने की पूरी फ्रीडम दे रहे हो, ठीक है. यू आर ट्रेनिंग देम टू डिपेंड अपॉन देयर ओन जजमेंट. वो उनकी स्किल डेवलप हो रही है इससे कि ताकि जो भी बिजनेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो अपने तरफ से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सके, ठीक है. एंड सो इससे क्या होगा कि उनको पूरी की पूरी फ्रीडम आप दे रहे हो. सो यहाँ पे सबऑर्डिनेट विल ट्राई टू टेक इनिशिएटिव कि वो किस तरह से कोई भी काम दिया है उसको किस तरह से एफिशिएंट या इफेक्टिव वे या इनोवेटिव वे फाइंड आउट करते हैं कि वो उस असाइन वर्क को या उस सिचुएशंस को प्रॉपरली हैंडल कर सके. सो डिसेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज अलाउिंग, इट इज डेवलपिंग और इट इज मोटिवेटिंग दी सबऑर्डिनेट्स टू टेक इनिशिएटिव एंड कम फॉरवर्ड बिकॉज उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व कर रहे हो. डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. अब एक बार आपने किसी सबऑर्डिनेट को या लो लेवल मैनेजर को डिसीजन मेकिंग पावर दिया है, ठीक है, इसका मतलब उसकी स्किल डेवलप होने वाली है. वो अपने आप को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आप को अभी से ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? मैनेजर लेवल पे यानी टॉप मैनेजमेंट को या लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये बंदे में पोटेंशियल है, ये बंदे में कैपेबिलिटीज है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप उसको प्रमोट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए. सो व्हाट इज दैट? सिंस दी सबऑर्डिनेट्स आर टेकिंग इनिशिएटिव टू डू दी वर्क very much efficiently and effectively, it is nothing but it is also helping the organization to develop managerial talent for future. फ्यूचर के लिए आप कहीं ना कहीं एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हो बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हो रहा है? यू आर ट्राइंग टू क्रिएट डायनामिक, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट लीडर्स. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज क्विक डिसीजन मेकिंग. नाउ ये डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है कि डिसीजन हर लेवल पे होने वाला है, ठीक है. तो यहाँ पे हर बार एम्प्लॉइज को या मैनेजर्स को दे डोंट हैव टू डिपेंड ओनली अपॉन दी टॉप मैनेजमेंट टू टेक दी डिसीजन. यहाँ पे क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होगा? जो चैनल है डिसीजन मेकिंग की दैट विल लीड टू फास्टर डिसीजन बिकॉज आपको हर बात के लिए
टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा. सो क्विक डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अगेन रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. अब डेलीगेशन में हमने देखा कि सुपीरियर इज डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स. इससे क्या हो सकता है कि सुपीरियर जो भी रूटीन के डिसीजंस है वो सबऑर्डिनेट ले लेगा, जो भी इंपॉर्टेंट या हाई प्रायोरिटी के डिसीजंस है वो मैनेजर या सुपीरियर ले लेगा, और इसके वजह से क्या हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं थोड़ी रिलीफ मिल रही है. तो वो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है या इंपॉर्टेंट पॉलिसी फ्रेमिंग वर्क है वो उसके ऊपर ध्यान दे सकती है. देन इट फैसिलिटेट्स growth. Again, decentralization में you are giving complete independence to the departmental heads or the lower levels of management. You are allowing them to take their decisions which is best suited for the department, and इससे वजह से क्या हो रहा है कि आप you are promoting competition among various department. तो ये competition की वजह से क्या होगा, each and every departmental head will try to give their better performance and increase their level of productivity. So here this will help the organization to achieve higher returns from the business which can be used for other expansion purpose as well. And last but not least is the better control. आप हर एक लेवल पे, हर एक मैनेजर लेवल पे या डिपार्टमेंट का यू कैन इवेल्युएट दी परफॉर्मेंस. इससे क्या हो जाएगा कि यू कैन फिक्स दी अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी. जो भी परफॉर्मेंस एनालिसिस आप करते हो तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि विच डिपार्टमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टुवर्ड्स दी अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. आप फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि अगर कहीं पे कोई भी गलत काम कर रहा है या गलत ट्रैक पे जा रहा है तो आप उसको करेक्टिव मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो, सो दैट दी परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज. So this is the importance of the decentralization. So we have seen that decentralization is the most beneficial and effective way of achieving the organizational goal. लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि डिसेंट्रलाइजेशन जब भी फॉलो करते हो वो बिना कंट्रोल के नहीं होना चाहिए. ठीक है, कंट्रोल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट शुड बी देयर, बिकॉज अगर कंट्रोल नहीं होगा तो इट विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे क्या होगा कि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम करेगा. हर लोअर लेवल मैनेजर है या इंडिविजुअल एम्प्लॉयज है वो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं. तो जिसके वजह से ऑफकोर्स द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड एडवर्सली. So in interest of organization, management has to maintain the balance between centralization and decentralization in major policy decision. So that's all. So with this I have completed with the chapter number 5, organizing. Thank you.